پر اسرار کہانیوں میں ایڈونچر، سسپینس اور کرائم سٹوری تو شامل ہوتی ہے، لیکن ان میں مزاح کا عنصر شامل کرنا ایک مشکل ترین کام ہے۔ زیر نظر سٹوری میں یہ انوکھی خوبی پیدا کی گئی ہے اور فرعون مصر کی لاتعداد پر اسرار کہانیوں میں اس کے حیرت انگیز داستان کی شمولیت ایک منفرد عمل ہے، اور جہاں اس میں لمحہ لمحہ سنسی ہے وہاں بے اختیار کہکے بھی شامل ہیں۔ ایڈونچر، سسپینس اور طنز و مزاح سے بھرپور ناول ایم اے راحت کے قلم سے تابوت۔ ایک خوفناک آواز ابھری اور میں چونک کر اٹھ گیا۔ میرے ساتھی اس آواز کا سراغ لگانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن قرب و جوار میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ نیچے اترو، اور ہماری پارٹی کے لیڈر نے کہا، جو بڑے بڑے گلیچوں والے بحری قزاق نما آدمی تھا، اور چنانچہ اس کے اشارے پر ہم نیچے اترنے لگے۔ پہاڑی ڈھلان دشوار گزار تھے اور ہمارے جسم زخموں سے چور، لیکن اس کے باوجود ہم نیچے اترتے رہے۔ ان ڈھلانوں کا اختتام جنگلوں پر ہوا اور شام جھک آئی تھی۔ بھوک پیاس سے بری حالت تھی، چنانچہ ایک جگہ قیام کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے جو کچھ ہمارے پاس تھا کھول کر سامنے رکھ لیا، اور پلاؤ، نرگسی کوفتے، دھنیے کی کھٹی مٹھی چٹنی اور گلچھیوں والے نے پلاؤ میں سے بوٹیاں چن کر نہایت کمینگی سے اپنی پلیٹ بھر لی۔ خدا تجھے غارت کرے، اور میں نے دل ہی دل میں سوچا، نرگسی کوفتوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، لیکن ایک ہاتھ لگ گیا تھا، البتہ چٹنی خاصی تعداد میں موجود تھی۔ پیٹ بھرنے کے بعد دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر آرام کیا جائے، لیکن وہ خبیث روح جو ہماری لیڈر تھی گددار آواز میں بولی، ہمارا سفر جاری رکھنا ہے اور دشمن مسلسل ہماری طاق میں ہے۔ کوئی ان سے انحراف کی جرات نہیں کرتا تھا، چنانچہ سب چل پڑے، اور آگے جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ پانی اور کیچڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور رات ہو چکی تھی۔ ہم پنڈلیوں کیچڑ میں چل رہے تھے، اور کیچڑ میں رینگتے کیڑے ہم سے کترا کر نکل رہے تھے، اور دفتن فائر کی آواز سنائی دی۔ ہم چونک کر اٹھ گئے، اور میری آنکھیں اندھیرے میں کسی کو تلاش کر رہی تھی، اور دفتن تھپ سے کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور میں اچھل پڑا۔ جنگی اصولوں کے مطابق مجھے فوری عمل کرنا تھا، چنانچہ میں نے اس ہاتھ کو پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا اور حملہ آور اچھل کر میرے سامنے آن پڑا۔ ارے تیرا ستیہ ناس! ارے چھوڑ، ہائے میں مر گئی! ارے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مارے گا؟ ارے چھوڑ! اور حملہ آور جدوجہد کرنے لگا، اور اچانک روشنی ہو گئی۔ سورج نکل آیا، اور یہ سورج میری کھوپڑی میں طلوع ہوا تھا اور سر میں چوٹ لگی تھی، اور شاید سورج کے ساتھ کچھ ستارے بھی چمکے۔ حملہ آور میری گرفت سے نکل گیا، لیکن یہ آواز، اور میں چندائی ہوئی آنکھوں سے اس بھیانک ماحول کو دیکھا، اور چھت کے ٹوٹے ہوئے تختے سے صبح جھانک رہی تھی، اور پلنگ سے کچھ فاصلے پر خالہ شہادت اپنا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ ارے باپ رے! اور میں نے اچانک نعرہ لگایا اور پلنگ سے چھلانگ لگا دی۔ نکل جا، اسی وقت نکل جا، اور خدا غارت کرے تجھے! نکل جا کمبخت کہیں کا، اور خدا کے لیے چھوڑ دے میرا پیچھا! کس عذاب میں گرفتار ہو گئی! اے اللہ، مجھے اس نجات عذاب سے نجات دلا! اور ساتھی نے میرا ہاتھ، نکل جا مرنے کے لیے! اور کب تک پالوں گی تجھے نکھٹو کو؟ 8 بج رہے ہیں صبح کے، اور تو لاڈ صاحب کا بچہ ابھی تک بستر پر پڑا اینٹ رہا ہے۔ کم وقت یہ تو بتا کہ تو نے کیوں پکڑا تھا میرا ہاتھ؟ اور اب خوابوں میں بھی بدماشی ہونے لگی۔ نہ بابا نہ، اب نہیں رکھوں گی میں تجھے، اور 1 منٹ بھی اس گھر میں۔ چاروں طرف بہو بیٹیاں والے ہیں، اور اگر تیرے یہی لچھن رہے تو میری عزت کی چادر پر 4 چاند لگا دے گا۔ نکل جا کم وقت، میں کہتی ہوں نکل جا۔ اور وہ خالہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ تو جانتی ہیں کہ محلے میں آج تک کسی کو مجھ سے شکایت نہیں ہوئی۔ اور پھر خالہ، آپ خود سوچیں، کسی لڑکی کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ اور پھر کیا مصیبت ٹوٹی تھی تجھ پر؟ دشمن تھا خالہ، خطرناک دشمن، اور فائر بھی ہوا تھا۔ ارے کم وقت، بلی نے دودھ کی دیگچی پھینکی تھی۔ وہ بس غلط فہمی ہوگی خالہ، مگر میرے سر پر وار بھی ہوا تھا۔ اوہ، اور خالہ میرا سر دیکھو! خالہ، دیگچی ماری تھی تیرے سر پر تو میرا ہاتھ ہی توڑ دے رہا تھا، نامراد کہیں کا! اور خالہ نے خطاب باز سے نوازتے ہوئے جواب دیا، سب کچھ ٹھیک ہے خالہ، اور یہ خواب مجھے اس دنیا میں نہیں جینے دیں گے۔ چلا جاؤں گا خالہ اس گھر سے، اور آخری بار اور کہہ دیں۔ اور میں نے روندی ہوئی آواز میں کہا، اور بس اتنا ہی کہنا کافی ثابت ہوا۔
और फिर हमेशा की तरह खाला पिघल गईं और दूध के पैसे हाथ पर धरे और देगची उठाकर दी और मैं दूध लेने चल पड़ा। इस भरी पूरी कायनात में खाला के अलावा कोई इंसान बाकी नहीं रह गया था और इंसानियत तीसरी जंग अजीम से पहले फना हो चुकी थी, कम अज कम मेरी ज़ात के लिए। और अब इस दुनिया में सिर्फ 2 जीरो सांस ले रहे थे, एक मैं और खाला शहादत। और नाम उनका शायद सआदत होगा, लेकिन अहले ख़ानदान तलीम याफ्ता थे और उन्होंने सीन बोलना झाला तस्वर किया और सआदत को बज़ोर अकल शहादत कर दिया। या फिर मजहबी जोश उभर आया होगा, और कुछ भी हो, खाला शहादत रूह इंसानियत थी और मेरा उनसे कोई रिश्ता ना था। बस मैं उनके किसी रिश्तेदार बहन के बेटे की सूरत से मुशाबा था और जिसे उन्होंने आलम जवानी में गोद लिया था और जो सूखे के मर्ज में गिरफ्तार होकर चल बसा था। सूरतों की मुशाबत मेरी ज़िंदगी में ख़ास दखल रखती है और बचपन तो याद नहीं, हाँ होश आया तो लंबा कुर्ता पहने, सर पर काली राय पूरी टोपी लगाए और गले में कशकोल डाले, बसों और सड़कों पर एहसान यतीमों के तकदीर पढ़कर डालो और फरियाद है दिल वालों का राग लापते हुए पाया। और फिर यतीम खाने के सालाना जलसे में जमशेद साहब ने मुझे देखा और देखते रहने और रोते रहे। और फिर मुंशी सदाकत अली से भेड़ बकरियों की तरह सौदा करके घर ले गए। घर पहुंचकर मालूम हुआ कि मैं उनके मरहूम बेटे का हमशक्ल था और ज़िंदगी बदल गई। जमशेद साहब और बेगम जमशेद ने हक़ इंसानियत अदा कर दिया, तालीम दिलाई, ज़िंदगी बनाई, लेकिन तकदीर साथ न दे सकी। बीए किया तो जमशेद साहब दिल के दौर से चल पड़े और उसके बाद बेगम साहबा भी जांबर ना हो सकी। ले पालक के लिए कोई वसीयत नहीं थी और रिश्तेदारों ने चील कौवों की तरह विरसे पर झपटे मारे और सब कुछ नोच कर ले गए। और मैंने रो रो कर फरियाद की कि मरहूम मैंने विरसे में मुझे भी छोड़ गए हैं, लेकिन किसी ने मुझ पर झपट नहीं मारा और मैंने भी अपनी अलग दुनिया बसाने का फैसला किया। रिहाइश के लिए किसी ने एक जगह बताई और मैं सर छुपाने के ठिकाने की तलाश में खाला शहादत के पास आ गया और खाला शहादत ने मेरा मजन कहकर मुझे गले लगा लिया और मैंने कहा, बिल्कुल ठीक। मंसूर से मजन बनने में अगर रहने के लिए जगह मिल जाती तो क्या बुरा था। और बाद में पता चला कि हजरत मजन खुद मुल्क अदम सदार कर खाला की खोली में मेरे लिए जगह खाली कर गए हैं। एहसान था उनका और ना मरती तो क्या करता। और बाद में खाला शहादत से मोहब्बत हो गई और नरम दिल खातून थी, गालियों की फैक्ट्री लगा रखी थी और अमूमन अपने किराएदारों को बड़ी फराख दिली से अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाती रहती थी और आंसू उनकी कमजोरी थे और अक्सर किराएदार आंसू बहाकर 6 माह का किराया हजम कर जाते। मेरी रिहाइश और खाना अब उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं भी बेगैरत इंसान नहीं था। 132 रुपये जो मेरा कुल असासा की सूरत में बतौर नकद मेरे पास थे और वो मैंने खाला शहादत के हवाले कर दिए और 5 रुपये रोज़ उनसे वसूल करता और जिन्हें वसूल करते हुए तकरीबन सवा साल से ज़्यादा हो गया था और हर बात का एहसास था मुझे, लेकिन क्या करता। और ये बेअतफ़ात और बेसबात दुनिया इतनी आसान जगह नहीं कि यहाँ ज़िंदगी के दिन सुकून से गुजारे जा सकें। ज़रूरियात इंसानी ने जीने के ढंग बदल दिए और अखलाकियात की लगत तब्दील हो गई और अब हर शख्स ऊपर की आमदनी का गवाह है। राह जहाँ मज़हब पर फतेह हासिल कर चुकी है और नए तरीके ज़िंदगी के लिए पुरानी अखलाकी, मुआशरती और इक़्तिदार पर मुश्तमिल लुगत के दूसरे रुख यानी मनफी पहलू पर अमल किया जा रहा है। शक्ल व सूरत का तारफ़ भी ज़रूरी है, वरना आपके ज़हन में कहानी का हीरो तख्लीक नहीं होगा। मगर शक्ल सूरत के बारे में क्या कहूँ, और मैं सारी दुनिया का हमशक्ल था। रिचर्ड बर्टन और जैसी आंखें और टोनी क्रिट्स जैसा चेहरा और दिलीप कुमार जैसी मुस्कुराहट। बस आप अपने किसी भी पसंदीदा हीरो की शक्ल में मुझे देख सकते हैं। प्रोफेसर बेग ने एक बार मुझसे कहा था, मिस्टर मंसूर, तुम्हारा चेहरा दुनिया का 8वां अजूबा है और मैं अपने तमाम तजर्बे के साथ कहता हूँ कि ऐसे पुरअसरार चेहरे दुनिया में बहुत कम होते हैं और यही तुम्हारी खदोखाल में एक अजीब बात है। क्या प्रोफेसर? और मैंने पूछा था। तुम्हारे नकूश इंसान की निगाह के साथ तब्दील होते रहते हैं और मैं इस चेहरे को आज तक नहीं पढ़ सका। अगर यूनान जहन में आए तो तुम में यूनान की झलकियाँ नजर आती हैं और रूस के बारे में सोचा जाए तो तुम रूसी नजर आते हो। मुगल दरबार जहन में हो तो शहजादा सलीम। और प्रोफेसर बेग मामूली शख्सियत नहीं थे और मुल्क के बहुत बड़े आदमी थे।
बेशुमार मौजूआत पर किताबें लिख चुके थे और जिनकी बड़ी हैसियत थी। खोली के आसपास रहने वाली बहुत सी नौजवान लड़कियां मेरा चेहरा देखकर अपनी सुबह का आगाज करती और जिस्मानी हालत भी काबिल रश्क है और खुदा के फजल से मुझे कोई बीमारी याद नहीं। मामूलात मुख्तलिफ नहीं थे। मुलाजमत के इश्तहारों और उनके ज़रिए की जाने वाली पुरलुत्फ़ तफरीहात को मुझसे ज़्यादा और कौन जानता था, और नफ़रत थी मुझे इस दुनिया से, उसके असूलों से और उसकी बनाई हुई इक़्तिदार से जो किसी को कुछ नहीं देते। खाला शहादत खुद एक गरीब औरत थी। अगर खालू मरहूम ये खोलियाँ ना छोड़ गए होते तो वो ना जाने कब की भूख से बिलक बिलक कर दम तोड़ चुकी होती, और इस वक्त मुझ जैसा कोई शख्स उसकी कफालत ना करता, और कौन इन बूढ़ी हड्डियों को समेटता, और मुझे उस पर बोझ नहीं बनना चाहिए। ऐसे ख्यालात ऐसे पुरस्कून गोशों में बैठकर बारहा मेरे जहन में आए, और बारहा मैंने दिन की रोशनी में बैठकर सोचा था कि आज रात वापस खाला की खोली में नहीं जाऊंगा। लेकिन शाम होते ही मेरे कदम किसी मैं कश की मानद साकी खाने की सिमत उठ जाते, और कहाँ जा सकता था वहाँ के अलावा। समुंदर की लहरें साहल से सर पटक रही थी और दूर दूर तक रेत के खामोश टेले बिखरे हुए थे। उनके दरमियान कहीं जिंदगी का वजूद नहीं था, और सारी कायनात में सिर्फ वही दो जीरो थे, सिर्फ दो, खाला और मैं। लेकिन ये ख्याल कायम न रह सका, और कुछ और लोग भी किसी अजनबी सियारे से आ गए थे, और वो सुर्ख रंग की एक कार में यहाँ आए। कार शहर से कुछ फासले पर रुक गई और वो दो अफराद नीचे उतरे। खूबसूरत नीलगो स्कर्ट में मलबूस एक लड़की और ग्रे रंग के कोट पतलून में मलबूस मर्द। लड़की नौजवान थी और उसके रंगे और तराशे हुए ब्राउन बाल हवा से अटकेलियां कर रहे थे, और मर्द का सर गंजा था, इसलिए हवाएं सिर्फ उसकी खाली खोपड़ी को छू सकती थीं। और दोनों साहल की तरफ चल पड़े और फिर लहरों से बच बच कर चहलकदमी करते रहे, और मैं उन्हें देखता रहा। बूढ़े शोहर की नौजवान बीवी, और उसके चलने का अंदाज बूढ़ों से रगबत नहीं ज़ाहिर करता था, बल्कि उसमें बेजारी पाई जाती थी, और शायद ज़िंदगी का कोई अहम फैसला कर ले, और इस वीरान साल पर आए थे। हालात उस नौजवान हसीना को किसी मजबूरी के तहत उस बूढ़े तोते से मंसूब कर दिया होगा, लेकिन अब सूरत हाल लड़की की कुव्वत से बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, और उसने फैसला सुना दिया होगा कि अब वो किसी कीमत पर उसके साथ नहीं रह सकती, और बूढ़े ने उससे कहा होगा कि वो आखिरी बार सोच ले। दफतन उनकी निगाह मुझ पर पड़ी, और वो इस तरह चौंक पड़े जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो, और उनके कदम जम गए। फासला ज्यादा नहीं था और मुझे देख सकते थे, और मैं उन्हें। और फिर अचानक लड़की बरक रफ्तारी से मेरी तरफ बढ़ आई, और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, नज़दीक से खदोखाल और भी हसीन लग रहे थे, और उन हसीन आंखों में हैरत का समुंदर मर्जन था। और मेरे खुदा, दानिश, तुम दानिश हो? और बिल्कुल ठीक, और मेरी जुबान से आदता निकल गया, और मिस्टर अब्दुल्ला जल्दी इधर आइए, मेरे खुदा। और बूढ़ा शख्स भी करीब आ गया, और दोनों पागलों की तरह मुझे देख रहे थे। और फिर बूढ़े ने कहा, बेखुदा दानिश, ये दानिश ही है। हाँ, इसने तस्लीम किया है, लड़की बोली। तुम्हारा नाम दानिश दाऊद ही है ना? और बूढ़े ने तस्दीक चाही। पहली बार मैंने आदतन बिल्कुल ठीक कह दिया था, लेकिन अब सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और कोई ख़ास वही बात थी। दफ्तर जहन की खिड़की खुल गई, और मैं इस कायनात में बहुत सौ का हम शक्ल हूँ। प्रोफेसर बेग के अल्फाज कानों में गूंज उठे, और तुम्हारा चेहरा दुनिया का 8वां अजूबा है, तो क्यों न इस अजूबे से फ़ायदा उठाऊं और एक चरखी से घूम कर ख्यालात की। और मुझे जैसे दुनिया से कुताए हुए इंसान के लिए कौन सी जगह गलत हो सकती है, कौन सी सही, और इसका फैसला करना हमाकत थी। ये कौन लोग हैं और क्या हैं, और इनकी निगाह में क्या हसीयत है, और मैं नहीं जानता था। लेकिन ज़िंदगी में कुछ तब्दीली तो हो, और इसलिए मैंने मनसूबा जहन में आ गया। मैंने खोए खोए अंदाज में कहा, हाँ, शायद यही मेरा नाम है, और शायद नहीं, हकीकतन रुबाब, और शायद तकदीर ही हमें यहाँ लाई है। और मेरे खुदा, मैं तो यकीन भी नहीं कर सकता कि यह सफ़र एक अहम हसीयत अख्तियार कर जाएगा, और अब लुत्फ़ आएगा। और वो शैतान की औलाद खुद को बहुत ज़हीन समझती थी, और मुझे हैरत है कि उसने दानिश को जिंदा कैसे छोड़ दिया। उठो दानिश, तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा दौर ख़त्म हो गया है, और अब तुम एक नई ज़िंदगी के मालिक बनोगे। उठो मेरे बच्चे। जी चाह के फूट फूट कर रो पड़ूं, और अल्फाज ऐसे थे कि काश ये हकीकत बन जाएं। मैं इस आदतमंदी से उठकर खड़ा हो गया, और लड़की जिसका नाम रुबाब लिया गया था बहुत पुरजोश नज़र आ रही थी।
सुर्ख कार में बूढ़ा मेरे बराबर पिछली सीट पर बैठ गया और लड़की ने स्टीयरिंग संभाल लिया और फिर कार रिवर्स होकर चल पड़ी और हंसी भी आ रही थी और हसरत भी थी। काश कि मैं खोए हुआ दानिश ही होता। बहरहाल हर्ज भी क्या था, और जब तक दानिश बन सकता था दानिश बना रहूं, और जब असल दानिश मिल जाए तो कुछ तो तब्दीली होगी जिंदगी में। और अपने आप को किसी से धोखाधड़ी से बचाने के लिए बस थोड़ी सी अदाकारी की जरूरत थी। कार एक खूबसूरत से होटल के कंपाउंड में दाखिल हो गई और जिंदगी में पहले कभी उस होटल के कंपाउंड तक मैं दाखिल होने की जरूरत नहीं हुई थी। दानिश जिंदाबाद बल्कि मुर्दाबाद, ताकि देर तक यह ड्रामा चल सके। और मुझे होटल के कमरे में लाया गया। बूढ़े ने कहा कि मैं वापस जाऊंगा रुबाब, और कुछ लोगों को टेलीकस देने हैं ताकि वो पहले से तैयार रहें, और तुम मिस्टर दानिश को संभालो। ओके मिस्टर अब्दुल्ला, आप इत्मीनान रखें। और सारी गुफ्तगू अंग्रेजी में हुई थी, लेकिन ये अंग्रेजी ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में बोली जा रही थी, और जिससे एहसास होता था कि वो लोग मकामी नहीं बल्कि किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। बूढ़े के जाने के बाद लड़की मुस्कुराती निगाह से मुझे देखने लगी, और इतनी साफ और हसीन मुस्कुराहट इतने करीब से कभी नहीं देखी थी। और हसीना भी मुस्कुराती थी और नाजनीन भी, लेकिन नाजनीन के दांत पान से रंगे हुए थे और हसीना के दांत ऊपर नीचे थे, और दोनों मोहल्ले की लड़कियां थीं जो मुझे देखकर मुस्कुराना फर्ज समझती थीं। लेकिन इस वक्त जब कोई आस पास ना हो, और उस मुस्कुराहट की बात ही कुछ और थी, लेकिन अदाकारी करना थी ताकि कुछ वक्त तो चल जाऊं और नए दौर की जिंदगी से कैफ और सरूर हासिल कर सकूं। इस तरह कम अज कम जिंदगी से ये जमूद तो टूटेगा। और मुलाजमत तकदीर में नहीं थी, और दुनिया में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। बकौल प्रोफेसर बेग के कि अगर ये चेहरा कुछ लम्हात की शगुफ्तगी बन जाए तो कैसा हर्ज है। चुनाचा मुझे अब ये बात उन लोगों को बावर करानी थी कि मैं ही दानिश हूँ। दानिश क्या है और उसके बारे में मुझे पूरी संजीदगी से गैर महसूस तरीके से उन्हीं लोगों से मालूमात हासिल करनी थी। वैसे मैं जानता था कि इस किस्म की गलतफहमियां ज़्यादा अरसे तक नहीं चलती। गुमशुदा दानिश किसी न किसी दिन उन लोगों को मिल ही जाएगा, लेकिन जब तक वो ना मिले और उसका कायम मकाम बने रहने में क्या हर्ज है। पुर इसरार हसीन लड़की अब्दुल्ला की हिदायत के मुताबिक मुझे संभाले हुए थी, और इन हालात में मुझे क्या करना था और यह भी मैं अच्छी तरह जानता था। चुनाचा मेरे अंदाज में खोया खोयापन बरकरार रहा, और उसकी मुस्कुराहट के जवाब में मैंने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की। और तब वो आहिस्ता से बोली, तुम्हारा लिबास बहुत बसीदा और पुराना है दानिश, और होटल के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ स्टोर्स हैं, और मुझे वहां तक जाने की इजाज़त दो, और दरवाज़ा खुला छोड़ देना, और तुम चाहो तो गुस्ल कर सकते हो। मैंने एक बार फिर कहने की कोशिश की कि बिल्कुल ठीक, लेकिन अब यह जुमला ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता था, और मुमकिन है कि दानिश को यह कहने की आदत ना हो। चुनाचा मैंने अपने आप को रोक लिया। लड़की बाहर निकल गई थी और मुझे गुस्ल खाने में जाने की जल्दी भी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे उसकी हदायत पर अमल करते रहना चाहिए। चुनाचा मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। क्या हसीन जगह थी, और मैंने तो ज़िंदगी में क्या कभी ख्वाब में भी ऐसे होटलों के अंदरूनी माहौल को तस्वर नहीं किया था। और क्या दुनिया है। और एक सिमत इंसान घास फूस की छत की महरूमी से बेनियाद होकर फुटपाथ और गंदे नालों के किनारे सोकर ज़िंदगी गुजारती हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं जैसे इंसानों के लिए ये होटल तामीर किए गए हैं, और जो अलफ लैला के अबुल हसन की दास्तान मालूम होते हैं। बहर तो जो कुछ करना है और जल्द अज जल्द कर लेना चाहिए। कौन जाने कि कब दानिश उन्हें वापस मिल जाए और मैं इस इंटरव्यू में भी फेल हो जाऊं। जदीद तर्ज के गुस्ल खाने में आने के बाद बाहर निकलने को जी नहीं चाहता था, और फिर हल्की सी दस्तक हुई और बाप की आवाज़ सुनाई दी, ये कपड़े ले लो दानिश, और मैं बाहर मौजूद हूँ, और ये बताओ कि काफ़ी पियोगे या चाय। काफ़ी की सूंदी सूंदी सी खुशबू दिमाग में चढ़ गई थी, और मैंने जल्दी से जवाब दिया, काफ़ी। ओके, वो बोली और लिबास मेरे हाथ में देकर पीछे हट गई। सुबहान अल्लाह, लिबास था कि आसमान पर तैरते हुए रेशमी बादल, और बहुत हसीन सिल्क का स्लीपिंग गाउन था, और जो खूबसूरत तर्ज में तराशा गया था। मैं गुस्ल करना भूल गया, और वैसे भी तकरीबन फारग हो गया था, और ये लिबास पहनने की आरज़ू दिल में मचलने लगी। बदन पर पहुंचकर कैसा लगता होगा। और फिर जब मैंने बदन खुश्क करके स्लीपिंग सूट और ऊपर से गाउन पहना, तो आप यकीन कीजिए कि यही महसूस हुआ जैसे अमेरिका के नए सदर का हुदा मुझे मिलने वाला हो। क्या शान थी, क्या वकार था, और मैं आईने में अपने आप को देख रहा था और खुद नसार हुआ जा रहा था। क्या हसीयत रखता है गिरोकोरी पैक
या क्या हैसियत रखता है रिचर्ड बर्टन और अब मेरे सामने। अलबत्ता ये तमाम हैसियत आर्जी थी, लेकिन अबुल हसन को भी तो रात ही के लिए बादशाहत मिली थी और जब तक भी चला जाए बिल्कुल ठीक। बाहर निकला तो रुबाब की आंखें मेरी मुंतज़िर थीं और मुझे उसकी मुस्कुराहट, साकन और उसके चेहरे के रंग में तब्दीली रुनुमा होती महसूस हुई और फिर उसके नकूश में वालहानापन और नज़रों में बेखुदी नजर आने लगी। वो अपनी जगह से उठकर मेरे करीब पहुंच गई और मेरा बाजू पकड़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा तैर रहा था, लेकिन सिर्फ चंद लम्हात के लिए, और उसके बाद उसने अपने आप को संभाल लिया और उसके तासरात का जायजा मैं बखूबी ले रहा था। लेकिन इन तमाम चीज़ों से अजनबी बने रहना ही मेरी कामयाबी की दलील थी और वह मुझे मेज़ तक ले आई और जहाँ काफ़ी रखी हुई थी, हसीन बर्तन थे और काफ़ी के साथ ही मुख्तलिफ अक़साम के सैंडविचेज़ और बिस्कुट वगैरह थे, और दिल तो चाहा कि रुबाब को उठाकर बाहर फेंक दूं और ये सब कुछ खुद ही खा जाऊं, वरना वो इसमें हिस्सेदार होगी। लेकिन फिर तबीयत के छोटेपन को खुद ही संभाला और उस पर नदामत महसूस की। खाने के दौरान भी बड़ी नफासत का सबूत दिया गया और जो मेरे ज़हन दिल पर बार गिरा गुजरा था, लेकिन इस ड्रामे के किरदार की तलब थी। रुबाब ने खुद ही मुझे काफ़ी बना कर दी और फिर आहिस्ता से बोली, तुम कहाँ गुम हो गए थे दानिश, और यहाँ कैसे पहुँच गए, और कुछ अपने बारे में बताओ तो सही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और मैंने एक बार फिर अपने आप को संभाला और उसके फौरन बाद खोए खोए से लहजे में बोला, मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता बस। और तुमने मुझे दानिश कहकर पुकारा तो मेरे ज़हन में ये बात उभरी कि मैं दानिश हूँ। हाँ, मैं दानिश ही तो हूँ, लेकिन मैं क्यों दानिश हूँ और इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ओह डियर, अब्दुल्ला का कहना दुरुस्त था और यकीनन तुम पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है और यकीनन तुम्हें ज़हनी तौर पर नाकारा करने की कोशिश की गई, लेकिन फिक्र मत करो और दिमाग पर जोर दो और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ। और उसके बावजूद मैं अपनी ज़ात की शनाख्त का ख्वाह हूँ और मेरे ज़हन में हर वक्त कर्ब सा रहता है और मेरा दिमाग दुखता रहता है और कोई मुझे मेरा माजी बता दे। तुम रुबाब हो ना? हाँ दानिश, हाँ मैं रुबाब हूँ और अब्दुल्ला एडवोकेट की भतीजी, और मेरा तुमसे मुलाकातें हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें याद दिलाऊंगी। कोरोना की वो रात याद है और जब कोरोना के हाल में आग लग गई थी और तुम मुझे इस तरह अपने बाजू में उठाकर ले गए और जैसे मैं फूल हूँ। कोरोना, आग, और मैंने दोनों आंखें बींच कर सर को झटका दिया। वो अपना नर्मो मुलायम हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए बोली, नहीं दानिश, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, और तुम अपने बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें मुख्तसर अल्फाज में बता देती हूँ, लेकिन अपने ज़हन पर जोर मत डालना और रफ्ता रफ्ता खुद ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। काफ़ी पियो प्लीज़, काफ़ी पियो। और मैं उसकी हदायत पर अमल करने लगा। रुबाब का रवैया बहुत ही दिल आवेद और मोहब्बत से सरशार था और काफ़ी ख़त्म करने के बाद उसने मुझे बिस्तर पर लेट जाने के लिए कहा और ख़ुद एक आरामदाह कुर्सी में नींद दराज हो गई। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी और मेरे लिए तो सोचने को कुछ था ही नहीं। हालात रोज़े रोशन की तरह यहाँ थे और थोड़ी देर के बाद उसने कहा, मिस्टर अस्करी का नाम तुम्हारे जहन में आता है दानिश? और मैंने उसकी जानब गर्दन घुमाई और चंद लम्हात उसके दिल का चेहरे को देखते रहने के बाद कहा, हाँ ये नाम कान आशना है। और संदल रुबाब बोली, तुम ऐसे नाम ले रही हो जो मेरे ज़हन के पर्दों पर ज़रब तो लगाते हैं, लेकिन उनकी सूरतें मेरी निगाहों में नुमायां नहीं होती। और खुदा के लिए मुझे बताओ, कुछ तो बताओ, और ये नाम मेरे ज़हनों को क्यों टटोलते हैं? इसलिए दानिश के नामों का तुम्हारी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक है और कुछ ज़र परस्तों ने तमाम इंसानी रिश्तों को भुलाकर हसूल ज़र के लिए तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दी। और अस्करी तुम्हारे वालिद और अबू दाऊद के जिगरी दोस्त थे, खुद भी एक बिजनेसमैन, बल्कि यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अबू दाऊद के हाशिया ब्रदर, और उनका कारोबार अबू दाऊद ही के ज़रिए चलता था। और फिर उन्होंने अबू दाऊद के खिलाफ एक साजिश की और अबू दाऊद ने खुदकुशी कर ली। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, बल्कि शायद सिर्फ अब्दुल्ला के दर हकीकत अबू दाऊद ने अस्करी की वजह से खुदकुशी की थी और अस्करी ने नहायत चालाकी से खुद को सारी दौलत का मतवली बना लिया और उसके साथ ही वह तुम्हारे सरपरस्त भी बन गए थे। क्या कहूँ मिस्टर अस्करी को, और ऐसी पुरनूर शख्सियत के मालिक हैं कि देखने वाले उन पर ईमान ले आएं, लेकिन दर हकीकत वो शैतान का दूसरा रूप हैं और ये बात मेरी और मिस्टर अब्दुल्ला के अलावा कोई नहीं जानता। ओहो, फिर क्या हुआ? अस्करी मुख्तलिफ ज़राए से अबू दाऊद की दौलत पर हाथ साफ करने में कोशा रहे,
लेकिन उन्हें यह खतरा था कि कहीं किसी वक्त तुम उनसे अपने वालिद की दौलत का हिसाब तलब करके उनकी गर्दन में फांसी का फंदा न बन जाओ। चुनाचा मुख्तलिफ तरीकों से वो तुम्हें अपने जाल में फांसने की कोशिश करते रहे, और जब वो उसमें कामयाब ना हो सके तो एक रात तुम मिस्र से गायब हो गए। मिस्र से? और मैंने मतहरीना अंदाज में कहा, हाँ, और क्या तुम मिस्र के बाशिंदे नहीं हो? बिल्कुल ठीक। और फ़राइन के मकबरे और अबुल होल सब कुछ मेरी निगाहों के सामने आता है। आओ, यकीनन मैं रातों को उनके बारे में कुछ सोचता रहता हूँ और ये सोचता रहा हूँ कि उन चीज़ों से मेरी ज़िंदगी का क्या ताल्लुक है, लेकिन ये कहानी मुझे याद नहीं आती। और अब भी मुझे ये सिर्फ एक कहानी सी लगती है, और एक ऐसी कहानी जो बचपन में सुनी जाए और ज़हनो दिल पर नक्श हो जाए। बिलाशुबा इन शैतानों ने तुम्हारे साथ कोई ऐसा अमल किया है और जिससे तुम्हारी याददाश्त को घिन लग चुका है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी में वापस लाऊंगी। और हम दोनों चचा भतीजी ने पहले ही यह फैसला किया था कि अस्करी ने ज़रूर तुम्हारे साथ कोई चाल चली है, लेकिन अफसोस कि कोई सबूत ना होने की बिना पर हम उस फरेब को दुनिया के सामने नहीं ला सके। और अब जबकि तुम मिल गए हो तो तुम यकीन करो कि हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं। और मिस्टर अब्दुल्ला भी मामूली इंसान नहीं हैं, और मेरे चचा और यूँ समझ लो कि हसन अस्करी की टक्कर के आदमी हैं, और हम तुम्हें तुम्हारा मनसब दिलाकर रहेंगे। और दानिश, ये हमारा आखिरी फैसला है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या दानिश कहीं तू जिंदा ना हो, और अस्करी कहीं तूने कोई ओछा वार ना किया हो कि दानिश मंजरे आम पर आ जाए और मेरा राज खुल जाए। दिल ही दिल में मैंने खाला शहादत से माजरत की कि प्यारी खाला जान, मैं ज़िंदगी के नए सफ़र पर चल पड़ा हूँ और आपका हिसाब किताब सूद दर सूद चुका दूंगा, और अगर इस सफ़र में मुझे मेरी मंजिल मिल जाए। लेकिन अपनी तकदीर की खोट को भी पहचानता था, और मुझे यकीन था कि किसी न किसी मरहले पर दानिश बस्तौल के हुए अस्करी के सामने आ जाएगा, और बहर तौर वो जब तक नहीं आता उसकी हैसियत इख्तियार किए रहने में क्या हर्ज है। मैं दावा तो नहीं कर रहा कि मैं ही दानिश हूँ, और बस ये लोग मुझे याद दिला रहे हैं और मुझे याद आता जा रहा है। रात को तकरीबन 10:30 बजे जब मिस्टर अब्दुल्ला वापस आ गए और सेहतमंद चेहरा मसरत से चमक रहा था, और हमसे पूछा कि हमने रात का खाना खा लिया या नहीं, और जब नफ़ी में जवाब मिला तो उन्होंने भूख की शिकायत करते हुए फ़ौरन खाना मंगवाया जाए। और खाने के दौरान रुबाब मिस्टर अब्दुल्ला से उनकी कार्रवाइयों के बारे में पूछती रहीं। इन तमाम लोगों को चौकस कर दिया गया है जो काहरा में हमारा इस्तकबाल करेंगे, और कल दिन की रोशनी में मैं दानिश के लिए रवानगी के कागजात तैयार करा लूँगा, और हमें 2 या 3 दिन लग जाएंगे, और उसके बाद हम काहरा रवाना हो जाएंगे। बहुत खूब, और आपने मुक्त सिर से वक्त में बहुत काम कर लिया मिस्टर अब्दुल्ला। और मैंने किस मजमाना अंदाज में उनके चचा भतीजी को देखा था। दोनों के दरमियान खासी बेतकल्फी मालूम होती थी, और वो बूढ़े को चचा जान कहने के बजाय मिस्टर अब्दुल्ला कहकर मुखातब करती थी। अब्दुल्ला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, दानिश, क्या तुम्हारे ज़हन के किसी गोशे में ये बात महफूज है कि अस्करी ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? अफसोस नहीं। और इनसे गुफ्तगू करने के बाद मैंने हालात याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ज़हन में नहीं आता, और बस मिटे मिटे से नकूश हैं। और मैं एक लॉन्च पर सफ़र कर रहा था, बहरी लॉन्च, और पता नहीं क्या नाम था, तराना तो नहीं, TRA, और शायद यही नाम हो, और उसका आगाज़ T से होता है। और फिर मुझे समुंदर की गहराइयों में धकेल दिया गया, और फिर उसके बाद न जाने क्या हुआ कि मैं आज भी समुंदर के किनारे अपना खोया हुआ माजी याद करने आता हूँ, और बस ये याद करना चाहता हूँ कि मेरा माजी क्या था। खुदा की कसम दानिश, और मैं तुम्हें तुम्हारा माजी याद दिलाऊंगी। और अब मैं अस्करी की चाल समझ गया, और उसने तुम्हें किसी डांट पर सफ़र करने के लिए आमादा किया होगा, और फिर खुले समुद्र में जाकर तुम्हें पानी में धकेल दिया होगा, और 100% ऐसा हुआ होगा। मुझे भी यकीन था कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, और उस यकीन को मैं बरकरार रखना चाहता था। और अब्दुल्ला ने शायद अपने लिए इस होटल का कोई दूसरा कमरा हासिल कर लिया था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम लोगों से आराम करने के लिए कहकर वो दूसरे कमरे में चला गया। अलबत्ता वो बुलाए जान मेरे साथ ही थी, जिसका नाम रुबाब था। बेहतर यह है कि अब तुम भी आराम की नींद सो जाओ और अपने दिन को हर किस्म की तकलीफ से आज़ाद कर दो। और मैंने रुबाब की तरफ देखा, और वो आंखें बंद करके दिलकश अंदाज में बोली, और मैं उसी कमरे में रहूंगी, लेकिन तुम्हारी मुहाफ़त की हैसियत है। मैंने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। दिल चाह रहा था कि इस नरमो गुदाज बिस्तर पर कई फुट ऊंची छलांग लगाऊं, और अपनी ज़िंदगी में इतना हसीन कमरा, इतना हसीन माहौल और इतने हसीन बिस्तर का तस्वर मैंने कभी नहीं किया था। और जो खाना खाया था
उसे खाकर बस दिल यही चाहता था कि मर जाऊं ताकि उसकी लज्जत ज़हन में महफूज रहे और फिर उसी दाल रोटी पर न उतर आऊं। रात के किसी पहर में सो गया और सुबह को खूब देर से जागा। क्या शहाना ठाठ थे और क्या खातर मदारत हो रही थी। और गुस्ल किया तो नया लिबास मुझे पहनने के लिए दिया गया, जो बेहद खूबसूरत होने के साथ कीमती भी था। रुबाब की निगाहें गालबन मेरे पूरे बदन की पैमाइश कर चुकी थी, क्योंकि वो स्लीपिंग सूट उसने मुझे शाम को दिया था और वो भी मेरे बदन पर फिट था। और इस वक्त जो हसीन लिबास मैंने पहना वो भी ज़रा बराबर मेरे बदन पर अनफिट नहीं था। और आईने के सामने देखकर मैंने दिल में सोचा कि दर हकीकत मैं इसी माहौल के लिए पैदा हुआ हूँ, और पता नहीं कि तकदीर ने मुंशी रफाकत के पास क्यों भेज दिया था। और वो कौन थे जो मुझे यतीम खाने में दाखिल करा गए थे। और मुमकिन है कि मेरी असलियत कुछ और ही हो। बिल्कुल ठीक, और मैं दानिश ही हूँ, 100% दानिश। दूसरा दिन भी गुजर गया और फिर तीसरा दिन भी, और चौथे दिन अब्दुल्ला ने कहरा जाने के लिए तमाम बंदोबस्त कर लिया और मैं हवाई जहाज के तस्वर से ही दिल में गुदगुदी महसूस करने लगा। कभी किसी खूबसूरत कार में भी नहीं बैठा था। हाँ, किस्मत ने धोखाधड़ी से जिंदगी में 2 या 3 बार टैक्सी में बैठने का मौका दिया था, वरना बस और मनी बसें ही हमारी गाड़ियां थी। वो सुर्ख कार जिसमें ये लोग सफ़र करते रहते होटल ही की मलकियत थी और उसे किराए पर हासिल किया गया था, और उसी ने हमें एयरपोर्ट भी पहुंचाया। और एयरपोर्ट की ज़िंदगी को 1-2 बार बाहर से देखा था और आज अंदर दाखिल होने का मौका मिला था। मैं खूबसूरत सूट में मलबूस अब्दुल्ला और रुबाब के साथ रनवे पर पहुंचा और फिर जहाज में दाखिल होकर हसीन एयर होस्टेस और जिन्हें सिर्फ रसायल ही में इश्तहारात की ज़ीनत मैंने देखा था, और आज मेरी मेज़बान थी। जहाज़ की नर्म और आरामदाह सीटें और फिर रुबाब का कुर्ब ज़हन और दिल को मसरूर किए दे रहा था। और वो ना सिर्फ हसीन सूरत और दिलकश बदन की मालक थी, बल्कि नफीस तराश का लिबास और दिल फरेब खुशबुएं भी इस्तेमाल करती थी। मैंने उसकी कुर्बत को हमेशा पसंदीदगी की निगाह से देखा था, लेकिन उसके अंदाज में एक रख रखाव था और कभी उसने जायज़ हदूद से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। और मैं भी अपने औकात से वाकिफ था और सोचता था कि कहीं कोई हमाकत ना हो जाए और जो मेरा सारा भरम तोड़ दे। हवाई जहाज आसमान की वसतों में महू परवाज हुआ तो मेरा कलेजा हलक से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मुश्किल तमाम खुद को संभाला, और दानिश की हैसियत मामूली नहीं थी और एक दौलतमंद नौजवान जिसका बाप मर चुका था। और रास्ते में मैंने रुबाब से पूछा, मेरे अहले खानदान की क्या हालत है। और रुबाब ने मेरे इस सवाल पर चौंक कर मुझे देखा और फिर मुस्कुरा दी। इसका मतलब है कि तुम जहन को मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हो और बहर तौर ज़रा सी एहतियात भी रखो। बहुत ज़्यादा दबाव तुम्हारे जहन को मुंतशिर कर सकता है। और अहले खानदान में था ही कौन? तुम्हारी वालदा तो बचपन ही में मर चुकी थी और तुम्हारे वालिद अबू दाऊद ही तुम पर जान सार करते थे, और तुम्हारे अलावा उनकी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं था। हाँ, जब ही तो मैं सोचता हूँ कि उनके अलावा कोई और तस्वीर मेरी निगाहों में क्यों नहीं उभरती। और ये दिमाग भी क्या चीज़ है, और जहन के कौन से खाने हैं जो सो जाते हैं। और मैंने कहा ना कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और जब हम लोग मौजूद हैं तो तुम क्यों उलझते हो। और मैं बिल्कुल नहीं उलझ रहा, और तुम पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। कायरा एयरपोर्ट ख्वाबों की दुनिया और तसव्वुरात की जन्नत, जवान गर्म खून में रवानी पैदा करने वाला पुर इसरार अहराम मिस्र और फराना के मकबरे अबुल होल और ना जाने क्या क्या। मिस्र से मुतल्लक लातादाद दास्तानें और रास्ते भर मेरे ज़हन में गर्दिश करते हुए मुझे बावर कराती नहीं थी कि मिस्री नसाद होने की हैसियत से मुझे इनके बारे में तजस्सुस नहीं करना चाहिए, बल्कि हर बात इस तरह ज़ाहिर हो कि जैसे मैं तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि अजनबियत मुझे उन लोगों की निगाह में मशकूक कर सकती थी। रनवे से गुजरकर कस्टम हाउस में दाखिल हो गए और यहाँ से फरागत में ज़्यादा देर नहीं लगी और किसी किस्म की घबराहट तो नहीं महसूस कर रहे। और बाब ने आहिस्ता से पूछा, वतन की खुशबू ज़हन को अजीब सा एहसास दिला रही है। और मैंने सहरज़दा अंदाज में कहा, और कुछ याद आ रहा है? हाँ, ये सब कुछ मुझे अजनबी नहीं महसूस होता और यूँ लगता है कि जैसे मैं सोता रहा हूँ और अब आँख खुल गई है। और मैंने जवाब दिया, और अचानक मेरे दिल को झटका सा लगा और दिल में ख्याल आया था कि क्या आलम ख्वाब में कोई ख्वाब की बातें कर सकता है, और कहीं ये सब कुछ ख्वाब ही तो नहीं। तुम्हारा जहन जाग जाएगा और मुझे यकीन है कि जब तुम काहरा की सड़कों पर निकलोगे
तो इस शहर में गुजरे हुए तमाम लम्हात तुम्हें याद आ जाएंगे, और किसी भी चीज को देखकर ज़हन पर जोर ना देना, और यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और बाब ने तलकीन की। मैं ख्याल रखूंगा, और मैंने जवाब दिया। और हम एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकल आए और काहरा एयरपोर्ट पर अब्दुल्ला के साथ मौजूद थे, और मिस्टर डिकलर की एक लंबी कार में जिसके शीशे तारीक थे मुझे बिठाया गया, और फिर वो बे आवाज़ कार प्रवास करती हुई एक खूबसूरत महलनुमा इमारत में पहुंच गई। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि मैं बाहर के मनाजर से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ भी नहीं हो सका, और ये इमारत मिस्टर अब्दुल्ला ही की थी। मुझे खामोशी से इमारत के ऊपरी मंजिल के एक कमरे में पहुंचा दिया गया, और कमरे की अकबी खिड़की से काहरा की जिंदगी नजर आती थी। उस खिड़की के पास खड़े होकर मैंने बाहर निगाह जमा दी, और हर आन ये एहसास होता था कि अब कोई धमाका होगा, और उसके बाद खाला शहादत के खड़ूस की चाशनी से भरी तलख आवाज़ उभरेगी, ओए मोए मस्टंडे लाड साहब, और क्या पूरी ज़िंदगी सोते हुए ही गुजार देगा, और कुछ करना है ज़िंदगी में या नहीं? और आँख खुल जाएगी, और उसके बाद ये दुनिया फिर से उतनी ही वीरान हो जाएगी। कभी ख्याल आता कि मैं एक ऐसी नौब्याहता दुल्हन हूँ जो बाबल का आंगन छोड़कर पिया के देश आ गई हूँ, और इमारत में मेरी खातर मदारत में कोई कमी नहीं रखी गई। 3 दिन तक रुबाब उसी इमारत में रही, और चौथे दिन उसने कहा कि वो जा रही है और मैं आराम से रहूं, और वो मुझे फ़ोन करती रहेगी। मैंने कोई एतराज़ ना किया, और इस दौरान मेरा ज़्यादातर वास्ता रुबाब ही से रहा था, क्योंकि अब्दुल्ला सिर्फ रास्ते के खाने की मेज़ पर होता था। उस रात सिर्फ अब्दुल्ला मेरे साथ खाने में शरीक था, और उसने कहा, कल सुबह डॉक्टर गजनफर तुम्हारा मुआयना करने आएंगे दानिश, और मैं तुम्हें उनके अस्पताल नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि अभी मैं तुम्हारी आमद की तशरीह नहीं चाहता, और इसलिए कि अभी दुश्मन गाफिल ही रहें, और डॉक्टर गजनफर तुम्हारा इलाज करेंगे और तुम उनसे तावन करोगे, क्यों नहीं मिस्टर अब्दुल्ला? और चीन की बंसी बजाने वाले तुम्हारे दुश्मनों के बहुत जल्द नींदें हराम कर दी जाएंगी। और ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गजनफर, जो एक पिस्ता कद स्याह फाम आदमी था, और उसके साथ 3 आदमी थे जो मुख्तलिफ अक़साम की मशीनें लाए थे, और साथ में एक टेलीफोन टाइप की चीज़ भी मौजूद थी। और मैं खामोशी से उसकी कार्रवाई देखता रहा, और मुझे एक स्टूल पर बिठाकर एक हेलमेट जैसी चीज़ सर पर चढ़ा दी गई, और उसके बाद न जाने कौन कौन सी धुनों में मेरे सर पर तबला बजता रहा। कोई 20 मिनट इस कार्रवाई में सिर्फ हुए, और उसके बाद डॉक्टर अपने काम से फारग हो गया, और फिर वह मेरे सामने आ बैठा। मैं कुछ चीज़ों के नाम लूँगा मिस्टर दानिश, और मेरे अल्फाज सुनकर आपके जहन में जो पहला ख्याल आए और वही लफ्ज़ बोल दें। मैंने गर्दन हिला दी, और जाहल मैं भी नहीं हूँ, और ये मेरा जहनी तर्जिया हो रहा है, और ये तर्जिया मेरा पोल भी खोल सकता था, और इसलिए दिल में तहिया कर लिया कि बेटे जो दिमाग में आएगा वो नहीं बताऊँगा, और अगर कुछ खराबी है तो निकले जहन में। तैयार हो? डॉक्टर ने सवाल किया। हाँ, मैंने आहिस्ता से पूछा। जवाब फौरन देना और ताख़ीर ना हो, और सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, मछली, डॉक्टर ने कहा, और सोफिया लारीन। और मैंने जवाब दिया, हालांकि देर में तालाब का लफ्ज़ आया था। क्या? और डॉक्टर चौंक पड़ा, और फिर जल्दी से बोला, एहराम मिस्र, गोल गुड्डू। और मैंने फौरन जवाब दिया, ओह माई गॉड, हैरत अंगेज। और डॉक्टर के मुंह से बड़बड़ाहट निकली, और फिर उसने कहा, हिटलर। मेंढक, मेरा जवाब था, और डॉक्टर की आंखें हैरत से फट गईं। जॉर्ज बर्नार्ड शाह। और वह रुंधी हुई आवाज़ में बोला, अमरूद का दरख्त। और मैंने मशीनी अंदाज में जवाब दिया, ओ शट अप। और डॉक्टर जला गया, लेकिन अब्दुल्ला ने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे सख्त निगाहों से घूरा, और डॉक्टर संभल गया। सॉरी, आई एम सॉरी। और फिर मुझे अपनी जगह से उठने की इजाज़त दे दी गई, और डॉक्टर ने अपने आदमियों को मशीन हटाने की हिदायत कर दी। और फिर वह पुरख्याल अंदाज में बोला, हैरत अंगेज रिपोर्ट है मिस्टर अब्दुल्ला। क्या डॉक्टर? दिमागी कुव्वतें बेहतरीन, जिस्मानी सेहत काबिल रशक, और जिस्म और जहन का राब्ता आम इंसानों से कहीं ज़्यादा, और दिमाग के किसी खुलिये पर कोई दाग नहीं, और कोई खुलिया डिस्टर्ब नहीं। लेकिन आखिरी इम्तहान, और ये कोई बहुत ही पचीदा खराबी है। जहनी सुकून की कुछ दवाएं लिखे देता हूँ, और मुमकिन है कि आर्जी इंतशार हो जो इस तरह दूर हो जाए, और अगर ना हुआ तो बाद में दूसरा फैसला करूँगा। ओके डॉक्टर। और वह सब चले गए तो मैंने दिल में सोचा, बिल्कुल ठीक। और शाम को रुबाब आई तो गोया ज़िंदगी की रोशन सातों में कौसे कज़ा उतर आई, और उसने आज मुझे काहरा घुमाने का फैसला किया था। और दूसरी कार इस्तेमाल की गई, लेकिन उसके शीशे भी तारीक थे ताकि बाहर से मुझे देखा ना जा सके। हम काहरा के बाज़ारों में निकल आए, और फिर रौनक सड़कें, हसीन चेहरों से भरी हुई पुररौनक सड़कों समेत हर चीज़ काबिल दी थी, और उनमें सरे फहरिस्त काहरा टावर
अबुलहूल और ना जाने क्या क्या था, लेकिन मैंने ये तमाम चीजें कार के अंदर ही बैठकर देखी। रात गए हम वापस आए और उस दिन के बाद से यह मामूल हो गया और रोजाना शाम को हम बाहर निकल आते। और अब मैं काहरा से वाकिफ होता जा रहा था और मुझे मेरा महल भी दिखाया गया जो मेरी मलकियत था और उसे महल ही कहा जा सकता था, और अस्करी उसी इमारत में क़याम पज़ीर था। फिर एक सुबह खिलाफे मामूल अब्दुल्ला नाश्ते की मेज़ पर नजर आया और बाप भी मौजूद थे, और अब्दुल्ला ने नाश्ते की मेज़ पर मेरा खैर मकदम किया। और तुम्हारी सेहत पहले भी काबिल रश्क थी दानिश, लेकिन अब और शानदार हो गई है। और क्या तुम ज़हनी तौर पर पुरसकून हो? बिल्कुल, और इसलिए कि मैं दोस्तों के दरमियान हूँ। और रात के खाने पर मैंने काहरा पुलिस के आला अफसरान अबू सलमान को बुलाया है और तुम उससे मुलाकात करोगे और सिर्फ काहरा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराओगे। उसके सवालात गैर मुतवक्का हो सकते हैं, लेकिन तुम उनके जवाब नहायत जहाना से दोगे। और क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? आप इत्मीनान रखें मिस्टर अब्दुल्ला। किसी किस्म की उलझन या खुद पर बीतने वाले वाक़यात का कोई तज़किरा उससे नहीं करोगे, और हमें सब्र से काम करना है क्योंकि मैं अस्करी को बदतरीन दुश्कस्त देना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक। मिस्री नसाद अबू सलमान हुलिये और जसामत से बिल्कुल पुलिस अफसर नजर नहीं आता था, लेकिन वो तनहा नहीं था। उसके साथ एक पुरवकार औरत और 2 तौबा शिकन लड़कियां भी थी जो रिश्ते में उसकी बीवी और बेटियां थीं। और मेरे लिबास का इंतखाब रुबाब ने किया था, और शायद इसमें उसने मेरी बर्तरी का आधार भी मलहूद रखा। दोनों लड़कियों ने मुझे देखकर महबूत रह गईं, और उन्हें तो आप जानते होंगे अबू सलमान। और अब्दुल्ला ने सरसरी अंदाज में कहा, हाँ शायद दानिश दाऊद, और आप तो शायद मुल्क से बाहर गए हुए थे मिस्टर दानिश। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। और कहाँ कहाँ की सियाहत की? रूम, पेरिस और हिंदुस्तान, मैंने जवाब दिया। और मिस्टर अस्करी को आप बहुत चाहते हैं और दोस्ती की आला मिसाल कायम की है उन्होंने। रुबाब, तुम कैसी हो? ठीक हूँ अंकल, और रुबाब ने जवाब दिया। और अबू सलमान की बेटियां रश्क भरी आंखों से रुबाब को देख रही थी, और पुरतकल्लफ खाने के बाद गुफ्तगू होने लगी। यानी अबू सलमान की एक बेटी मुझसे इंटरव्यू लेने आ गई। रूम, पेरिस और हिंदुस्तान की सियाहत में आपको बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ा होगा मिस्टर दानिश। कैसी मुश्किलात? वहाँ की लड़कियां आपको देखने के बाद पुरसकून रही होती। और लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, और आप कुछ बेसकून हो गए हैं मिस सलमान। और बाब ने तंजिया कहा, मैं तो इससे इनकार नहीं करूंगी। और लड़की बेबाकी से बोली। और रुखसत होते हुए दोनों लड़कियों ने मुझे अपने घर आने की दावत दी। और उन लोगों के जाने के बाद अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब हम नहायत सुकून से अस्करी पर हमला कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि कल शाम उसके लिए बेहतरीन होगी। कल शाम तुम्हें होटल सहारा मुंतकिल कर दिया जाएगा दानिश, और इस सिलसिले में तुम्हारी मुकम्मल ब्रीफिंग कर दी जाएगी। तो क्या मिस्टर दानिश अब सहारा ही में मुकीम रहेंगे मिस्टर अब्दुल्ला? और रुबाब ने बेचैनी से पूछा। हाँ रुबाब, और कल से खेल का बाकायदा आगाज किया जा रहा है, और तुम जानती हो कि सहारा का गेम्स हॉल अस्करी की पसंदीदा जगह है, और जहां वो रोजाना जुआ खेलता है, उसी जुआ खाने में वो दानिश को देखेगा, और उसके बाद उस पर क्या रद्द अमल होगा ये हम देखेंगे। और अब्दुल्ला ने जवाब दिया, क्या मैं दानिश के साथ या सहारा के किसी दूसरे कमरे में रह सकती हूँ? और मेरा मतलब है कि उनकी निगरानी के लिए। हरगिज़ नहीं, और हमें उनसे बिल्कुल दूर रहना होगा। लेकिन इत्मीनान रखो, बेशुमार आंखें उनकी निगरान होंगी। और बाब ठंडी सांस लेकर रह गई थी। दूसरी सुबह मेरी ब्रीफिंग की गई और मुझे बताया गया कि उसके बाद मुझे बताते खुद अस्करी की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए अमल के मैदान में उतरना होगा, और मैं सहारा के कमरे में क़याम करूंगा, और रात को 8 बजे के बाद उसी होटल के जुआ खाने में जाऊंगा, और जहां अस्करी रोज़ाना आता है। और मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई गई थीं जिनमें अस्करी और उसके अहले खानदान मौजूद थे, और मैंने इस बात का इजहार किया कि मैं उन लोगों को जानता हूँ। अब्दुल्ला ने कहा कि बाद के हालात तुमको अपने जहन में रखोगे, और मुमकिन है कि अस्करी तुमसे मुलाकात करे और तुम्हारा अहवाल पूछे, और ये भी कहे कि तुम बगैर इत्तला के कहाँ चले गए थे। और हर मसले पर मुझसे राब्ता कायम करने की जरूरत नहीं, तुम खुद भी अहम फैसले कर सकते हो, और मुझे तुम्हारे फैसलों से इत्तफाक होगा। अहम ज़रूरतों पर मैं तुमसे खुद राब्ता कायम कर लूँगा, और मेरी तुमसे गुफ्तगू अपने फैसले की हैसियत से हुआ करेगी। तमाम अमूर मैंने बखूबी समझ लिए, और अब मुझे दोहरी अदाकारी करनी थी, एक ऐसे शख्स की भी जो हकीकत हाल को समझता है और अपने दुश्मनों से वाकिफ़ है, और उसकी भी जो चंद लोगों का आलाकार था। अब जबकि यकीन हो गया था कि यह सब कुछ एक ख्वाब नहीं है, और तकदीर मुझे मेरी तमाम महरूमियों का कर्ज चुकाने पर आमादा है, तो मुझे भी बाअमल होना था, ताकि काहरा के एक दौलतमंद इंसान की हैसियत से मंजर आम पर आकर बाद की ज़िंदगी को हसीन बनाऊं।
اور اس کے لیے مجھے ذہانت سے کام کرنا تھا اور یہ اندازہ لگانا تھا کہ وہ چچا بھتیجی کا مجھ سے کیا مفاد وابستہ ہے اور وہ خود کیا چاہتے ہیں۔ دن کے 3 بجے مجھے ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا اور پھر ایئرپورٹ سے باہر آ کر میں نے ٹیکسی لی اور سہارا چل پڑا، اور اخراجات وغیرہ کے لیے اتنی معقول رقم مجھے دی گئی تھی کہ ایک لمحے کو خیال آیا کہ کیوں نہ یہ رقم لے کر ہی چمت ہو جاؤں، لیکن اس خیال کو میں نے خود ہی خیالی جوتے مار مار کر ذہن سے نکال پھینکا۔ سہارا خوابوں کی جنت تھا، اور یہاں رہ کر خود کو دنیا کا کوئی بھی امیر کبیر انسان تصور کیا جا سکتا تھا۔ جی چاہا کہ خود کو ہنری فور اور اونا سس کے روپ میں دیکھوں، لیکن کلب کی حسین ویٹرس نے مداخلت بے جا کر کے سارے خواب چکنا چور کر دیے، اور جیکو لین کی مسکراہٹ خلاؤں میں گم ہو گئی اور وہ میرا سامان سجانے آئی تھی۔ کوئی اور ضرورت جناب، اور اس نے جیکو لین سے زیادہ خوبصورت مسکراہٹ اپنے حسین چہرے پر بکھارتے ہوئے کہا، اور فی الحال نہیں، ضرورت پڑی تو، اور میرے کال بٹن ہے اور میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اور اس نے دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا اور میں اس بٹن کو دیکھنے لگا، اور پھر میں نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ بڑے آدمی اسی طرح مقبول ہوتے ہیں، حالانکہ جتنی رقم میں نے ٹپ کے طور پر دی تھی وہ عام حالات میں میرے 15 دن کے لیے کافی تھی۔ سہارا کے اس ہوٹل میں کئی گھنٹے گزر گئے اور رات سے قبل باہر نکلنا مناسب نہیں تھا، اور پھر 7 بجے میں تیاریاں کرنے لگا اور ایک خوبصورت سوٹ پہن کر آئینے کے سامنے آ گیا۔ اگر یہ کوئی طویل خواب ہے تو اسے جاگنے کے بعد موت ہی میرے لیے سب سے مناسب چیز ہوگی، لیکن اسے خواب بھی سمجھا کیوں جائے، اور میں ایک باعمل انسان ہوں۔ اور 8 بجے کیل کانٹے سے لیس ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور نیچے جانے کے لیے چل پڑا۔ سہارا کی رونق عروج پر تھی اور ایک پرشباب حسن کائنات سٹیج پر اعضاء کی شاعری کر رہی تھی، اور جسے دیکھ کر حقیقتاً میرا دل اچھل کر حلق تک آ گیا، کیونکہ اس شاعری کا چربا پردہ سیمی تک کی محدود رہ کر دیکھا تھا، اور یک بارگی دل چاہا کہ سٹیج کے قریب آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاؤں، مگر دوسرے ہی لمحے عقل اس خیال کو بے پناہ القابات سے نوازتے ہوئے اتنے جوتے مارے کہ یہ خیال مقتول ہو گیا، اور دوسرے ہی لمحے حال کو نظر انداز کر کے اور ہوٹل کے مختلف گوشوں میں بیٹھے ملکی و غیر ملکی جوڑوں کو وقت اور دولت کی پر لطف سائتوں سے لطف جاں کشید کر کے سرور حاصل کرتے ہوئے دیکھتا ہوا گمید حال کی جانب جا رہا تھا۔ شاید تقدیر کو میری شاہانہ بے قید زندگی کو حسن کی جلوہ سمانی سے راستہ کرنے کا خیال آ گیا، اور سرخ و سیاہ رنگ کی دلکش و حسین لباس میں ملبوس چاند کا ٹکڑا میری طرف بڑھا تو میں نے اسے فوراً پہچان لیا، اور یہ مصری پولیس افسر ابو سلمان کی بیٹی تھی۔ خدا کی پناہ، آج سہارا میں آنے والیاں شدید خطرات کا شکار ہیں، اور میرے خیال میں تو تمہارے پیچھے زلیخاؤں کا مجمع ہونا چاہیے تھا، اور ان کے پیچھے اسپتال کی ایمرجنسی سروس کا عملہ۔ ہیلو مس سلمان، اور میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پرکابر لہجے میں کہا، ہرگز نہیں جناب، اور میں آپ سے اس تنگ دلی کے اظہار کی توقع نہیں رکھتی، اور جتنی حسین صورت ہے اتنی کشادہ دل بھی ہونی چاہیے، اس نے کہا، اور میں ذہنی معاملے سلجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، آپ کے چہرے پر وہ پذیرائی نہیں ابھری اور جس کی میں طالب ہوں، اور ویسے میرا نام تابہ ہے اور آپ مجھے اسی نام سے پکاریں گے۔ بہتر، اور میں نے بالکل ٹھیک کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا، تنہا ہیں بہت، اور جیسے اس ایک لفظ میں نے زندگی کی ساری اداسیاں سمو دیں۔ میرا خیال تھا کہ خاتون رباب آپ جیسی نادر و نایاب چیز کو کبھی بھی تنہا چھوڑ کر ہم دل رباؤں کو ڈاکہ زنی کی ترغیب نہیں دیں گی، اور اس نے شرارت امید انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کیا چوروں کا خطرہ ہے؟ میں نے پوچھا، ایک قدم پر، اور میں خود بھی چور ہوں اور آپ سے چرا لینا چاہتی ہوں۔ اور وہ ہنس پڑی۔ چرا لیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ اس چوری کی رپورٹ آپ کے ڈیڈی کے پاس ہی درج ہوگی اور وہ آسانی سے سراغ لگا لیں گے۔ آپ کے لیے تو پھانسی پر چڑھا جا سکتا ہے اور جیل جانا کیا معنی رکھتا ہے۔ آئیے، کہاں بوڑھوں کے درمیان آ گئے، اور وہ بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ کر واپس حال میں آ گئی، جہاں شاعر اذاں خواتین و وجد کے عالم میں رقص غزل کا مقطع پیش کر رہی تھی، کیونکہ چند لمحوں بعد ہی مہو رقص شروع ہوش میں آ گئے تھے، اور حسن جہاں سوز شاید تازہ دم ہونے کے لیے اندر چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے اپنی 2 قائم مقام کو سٹیج کی رنگینیوں کو مزید 2 آسچا کرنے کے لیے چھوڑ گئیں۔ کچھ پئیں گے؟ ابھی نہیں، آئیے اور گیمز روم میں چلیں، میرے نام سے کھیلیے اور مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا، اس نے کہا، اور گیمز ہال کی طرف چل پڑی۔ میں اپنے پسندیدہ لوگوں کو کبھی داؤ پر نہیں لگاتا، اور میں اندر داخل ہوتا ہوا بولا،
कौन है वो? और उसने महबूबियत से पूछा। आप। और मैंने बेतकल्फी से जवाब दिया। गेम्स हॉल में खूब रश था और मेरी निगाहें अस्करी को तलाश कर रही थी और थोड़ी देर के बाद वो गोहरे मकसूद नजर आ गया। सफ़ेद सूट और सफ़ेद बालों के नीचे सेहतमंद चेहरे का मालक अस्करी एक मेज पर पोकर खेल रहा था और मेरी निगाहें उसका तवाफ करते हुए उसकी शख्सियत का जायजा लेने लगी। एक निगाह में मुझे अंदाजा हो गया कि वह सख्त गिर और ख़तरनाक इंसान है और उसके नज़दीक बैठे हुए लोग भी मतमूल और साबी हसीयत मालूम होते हैं। और मैं ताबा के साथ मुख्तलिफ मेज़ों पर खेल खेलता रहा, लेकिन जाविये ऐसे रखे कि मेरी निगाह अस्करी पर रहे और वो पूरी तवज्जो से खेल में गुम था। और फिर शायद बाजी ख़त्म हुई और उसने मुस्कुराते हुए मेज़ की सतह पर रखा पाइप उठा लिया और मैं ताबा के साथ एक ऐसे जाविये पर आ गया कि वह मुझे देख ले। सोने की कीमती लाइटर से पाइप सुलगाते हुए उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और मैंने जाविया बदल लिया, लेकिन इस तरह के उसकी हरकत मुझे नजर आती रहें और पाइप उसके दांतों से छूट कर नीचे गिरा और चिंगारियां बिखर गईं। इन चिंगारियों से दूसरे लोग भी मुतासर हुए। चुनाचा कुछ इंतशार पैदा हो गया और फिर अस्करी अपनी मेज से उठ गया और मैंने किन अखियों से उसे गेम हॉल के दरवाजे से वापस जाते हुए देखा था। ताबा इस दौरान बहुत कुछ कह चुकी थी मुझसे, लेकिन क्या, और मैंने कुछ सुना नहीं था। और जब वो गुम हुआ तो मैं ताबा की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या ख्याल है? और ताबा का आखिरी जुमला था, बिल्कुल ठीक। और मैंने बेख्तियार कहा और वह मुस्कुराने लगी। उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। और वह किसी कदर शर्माए हुए अंदाज में बोली और मैं मुंह फाड़ कर रह गया। न जाने उसकी कौन सी बात मैंने ठीक करार दी थी और फिर वादा रहा कहाँ। मगर आपको कहाँ मिला करूं और मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें और मैं खुद ही आपको रिंग कर लूँगा। और क्या आप यहाँ रुकेंगे? हाँ, अभी मुझे कुछ काम है। ताबा ने परस से आना कार्ड निकाल कर मुझे दिया और फिर अलविदाई निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, दिल तो नहीं चाहता, लेकिन पुलिस वालों के असूल सख्त होते हैं और इसलिए मजबूरी है, लेकिन मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। बिल्कुल। और मैं जुमला अधूरा छोड़ दिया और फिर वो चली गई और सहारा हसीन था। उसकी रौनक काबिल दी थी और मैं वो देख रहा था कि जो पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन ज़्यादा देखना भी मतलूब नहीं था। अस्करी मुझे देख चुका था और अब ये देखना था कि उस देखने का नतीजा क्या होता है। चुनाचा वापस अपने कमरे में दाखिल हो गया और मेरे कमरे की वेट्रेस शायद किसी गोशे में छुपी मेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि चंद ही लम्हात के बाद दरवाजे पर दस्तक उभरी और फिर वो अंदर दाखिल हो गई। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो वो बोली, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है और उसमें मेरा कोई कसूर? मैंने सवाल किया। नहीं, मेरा मतलब है कि अब मैं कल 4 बजे वापस आऊँगी और उस वक्त तक बिल्कुल फुर्सत है मुझे। आराम करो, खुदा हाफिज, मैंने जवाब दिया और वो तज्जे भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। मेरे लिए और कोई खिदमत? उसने सवाल किया। शुक्रिया, दरवाज़ा बंद करती जाना। और मैंने कुर्सी पर बैठकर जूते उतारते हुए कहा और वो नाराज़ हो गई क्योंकि दरवाज़ा खासी आवाज़ में बंद हुआ था। बिल्कुल ठीक। और मैंने ठंडी सांस लेकर कहा और जूते उतारने के बाद मैं लिबास शब ख्वाबी पहनकर मसहरी पर जा लेटा और दिल में मैंने कहा, बेटे मंसूर, दानिश बनकर तुम जिंदगी से जो लुत्फ उठा रहे हो उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो। और हर मंजर का एक पस मंजर होता है और उसका मंजर का पस मंजर क्या है उसका अंदाजा तुम खुद भी लगा सकते हो। और सिर्फ दूसरों की चालों पर इंसार ही काफ़ी नहीं होता, खुद भी बहुत कुछ करना पड़ता है। और अस्करी ने देख लिया है और हालात जो अब तक इल्म में आए हैं बताते हैं कि अस्करी देखकर बाग नहीं हो गया और कोई कार्रवाई होगी और ज़रूर होगी। सुबह हुई तो यकीन नहीं आया और हर सुबह बेयकीनी की सुबह होती थी और दिल इसी खौफ से डरता रहता था कि अभी खाला शहादत की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन बेचारी खाला अब वो हज़ारों मील दूर रह गई थी और मुझसे कि काश वो मुझे 5 स्टार में ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए देख सकती। सुबह का यकीन हो गया तो मामूलात याद आ गए और गुस्ल वगैरह से फारग होकर वेटर को कॉल की और जवाब में एक 9 उम्र मिस्री अंदर आ गया और उससे नाश्ता तलब किया। और फिर नाश्ते से फारग हुआ ही था कि टेलीफोन की घंटी बाज उठी। आपकी कॉल है सर। और ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी और दूसरी तरफ से बोलने वाला अब्दुल्ला ही था। और मेरी आवाज़ पहचान गए ना? नाम ना लेना। क्यों नहीं जनाब, मुबारक हो और बहुत उम्दा जा रहे हो। और रात को तुमने उसे चित कर दिया और उसके 6 अफराद तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। एक बात की खसूसी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और पुलिस अफसर की बेटी तुम्हें कहाँ से मिल गई? ओह, वो यहीं सहारा में। और ये इत्तेफाक से बहुत अच्छा हुआ और उसे देखकर वो मज़ीद बदहवास हो गया है। और दूसरी सूरत में वो रातों रात तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता था, लेकिन अब वो इसकी जुर्रत नहीं कर सकेगा।
और उसने अंदाजा लगा लिया होगा कि तुम्हारी वापसी मजबूत बुनियादों पर है। बिल्कुल ठीक, काम शुरू हो गया है और होशियारी से बाअमल रहो और किसी गैर मुतवक्का सूरत हाल पर खुद ही फैसला कर सकते हो। आप इत्मीनान रखें मिस्टर। और मैंने अब्दुल्ला का नाम लेना चाहा, लेकिन वो फौरन ही खंकार दिया और बोला बिल्कुल ठीक, और दूसरी तरफ से लाइन बेजान हो गई और मैं फोन रखकर मुस्कुराने लगा। उसके बाद मैं आइंदा प्रोग्राम के बारे में गौर करने लगा और अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं मंजर आम पर आ गया हूँ और अब अस्करी को ये मालूम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैं कहाँ रहता हूँ, इसलिए आज़ादाना बाहर निकलने में कोई हर्ज नहीं। और कहरा की सैर कर चुका था, लेकिन तशंगी बाकी थी। कार में बैठकर अबुल हॉल के नीचे बैठे बैठे मुसव्वरों पथारे वालों के ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात नहीं हो सकती। चुनाचा होटल के कमरे से बाहर निकल आया और लिफ्ट से नीचे छोड़ दिया और बाहर निकला ही था कि खुशबू का एक झोंका नाक से टकराया और एक कली मेरे सामने शगुफ्ता हो गई। उसके स्याह बालों के गुच्छे पेशानी पर जलमला रहे थे और उस स्याही के नीचे शुफ्क झलक रही थी और वो शायद लिफ्ट में दाखिल होने वाली थी, लेकिन मुझे देखकर ठटक गई और दूसरे ही लम्हे मेरी आंखों में बिजली सी कूद गई और ये सूरत मैं देख चुका था और उसकी तस्वीर मुझे दिखाई गई थी। याददाश्त के खाने में उसका नाम हसाना अस्करी दर्ज था और अस्करी की छोटी बेटी हसाना, और मैं भी रुक गया। मेरा ख्याल था कि तुम मुझसे भी नावाकिफियत का इजहार करोगे और क्या जवाब दो इस बात का। जो दिल चाहे दे दो, कौन रोक सकता है तुम्हें। और उसने उदास लहजे में कहा और मैं खामोशी से उसे देखता रहा। कहाँ जा रहे थे? कोई खास प्रोग्राम नहीं। आओ, उसने तहकमाना अंदाज में कहा। बेहतर है कि मुझे तनहा छोड़ दो हिसाना। और मैंने कमाले जुरा से कहा, और दिल धकड़ पकड़ कर रहा है, लेकिन जिंदगी यूं ही तामीर नहीं हो जाती। और किसी जुरातमंदाना अंदाज ही में गोहरे हयात पा सकता था और इसी होटल में कयाम पजीर हो। हाँ, तुम जानती हो। और मैंने खफीफ सी मुस्कुराहट से कहा, और मैं तुम्हारे पास ही आई थी अपने डैडी से इजाज़त लेकर। डैडी के बारे में शायद तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हो और मुझे कुछ वक़्त हो दो दानिश, अपने कमरे में ही वापस चलो। और उसने अल्तजा अमीज लहजे में कहा और मैं झटके से लिफ्ट की तरफ वापस पलट पड़ा और जो दोबारा नीचे आ गई थी। अस्करी की जहनी कैफियत का मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया था और मुझे देख कर उसके दिलो दिमाग में हलचल सी मच गई और वह बेचारा बदहवास हो गया था और उसने पे दर पे कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थीं। हसाना से गुफ्तगू करने के लिए मैंने एक लाहे अमर मुतय्यन कर लिया और फिर उसके साथ कमरे में दाखिल हो गया। क्या पियोगी? काफ़ी, उसने जवाब दिया और मैंने रूम सर्विस को फ़ोन करके काफ़ी तलब कर ली। तब वो बोली, और पूछ सकती हूँ कि होटल में क्यों क्याम किया है और मेरे बारे में तुम्हें किसने इतला दी? डैडी ने। उस सवाल के जवाब में वही बेहतर बता सकते हैं। और मैंने पूछा था उनसे, और उनका कहना है कि तुम किसी गलतफहमी का शिकार मालूम होते हो। और ये बताओ कि तुम कहाँ चले गए थे? उसका जवाब मिस्टर अस्करी ही दे सकते हैं हिसाना। मिस्टर अस्करी गोया अब वो अंकल नहीं रहे। और हिसाना ने शिकायती लहजे में कहा और मैं फीकी सी हंसी हंसकर रह गया। डैडी ने हालांकि तुमसे इस खदशे का इजहार किया था कि तुम जानते हो जो बेशुमार लोग हमारे दरमियान नफाक डालने में कोशा हैं, आखिर तुम उनका शिकार हो गए शायद। और मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू मत करो दानिश, मैं सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहती हूँ। हिसाना, बराह करम ऐसी गुफ्तगू ना करो और तुम्हें घर वापस चलना होगा, वरना मैं भी यहीं तुम्हारे पास आकर रहने लगूंगा। और ये सब कुछ अब मुमकिन नहीं हिसाना, तुम्हें संजीदगी से काम लेना होगा और मुझ पर जो गुजरी है तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं, और मेरे लिए अब ये सब कुछ मुमकिन नहीं। फिर क्या करने का इरादा रखते हो? अफसोस इस बारे में मैं तुम्हें भी नहीं बताया जा सकता। और काफ़ी सर्द हो गई थी और मैं खामोशी से छोटे छोटे घूंट लेने लगा और हिसाना थोड़ी देर तक मुझे देखते रही और फिर वो भी काफ़ी पीने लगी। तकरीबन 1 घंटे तक वो मेरे साथ रही और इस दौरान मुझे बार बार टटोलती रही और मजबूर करती रही कि थोड़ी देर के लिए ही सही मैं उसके साथ चलूं। लेकिन मैंने हर बात इनकार कर दिया और वह बाजार सिसकियाँ लेती हुई रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद मैं खोपड़ी खुजाने लगा और हसीनाने मिस्र मुझसे इत्तफाक के मुजाहरे किए जा रहे थे और मैं राह बना हुआ था और उस लम्हाती इक़्तिदार में ज़िंदगी की उस राह से भी आगाह होना चाहता था, लेकिन अभी मैं हालात का कैदी था। सबसे ज़्यादा हैरत अपने इस अनोखे थोपड़े पर थी और जिसने इस बार भी किसी का हमशक्ल बनकर दिखा दिया था और किसी का कोई शुबा नहीं हो सका था। अब मुझे बेचैनी से अब्दुल हवाल के राब्ते का इंतजार था और बाहर जाने का इरादा तर्क कर दिया। और तकरीबन 15 मिनट के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर वेटर की शक्ल नजर आई। रूम नंबर 813 में शर्की साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कौन साहब? शर्की साहब। और वेटर ने जवाब दिया।
ٹھیک ہے، میں مل لوں گا ان سے، اور میں نے جواب دیا اور ویٹر باہر چلا گیا۔ لمحات سوچنے کے بعد اٹھ گیا اور پھر لفٹ نے مجھے 8ویں منزل پر پہنچا دیا اور روم نمبر 813 لفٹ کے قریب ہی تھا۔ میں دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا اور لمبوترے شکل کے ایک مقامی آدمی نے میرا استقبال کیا تھا۔ مسٹر دانش، براہ کرم اندر آ جائیے، اور اس نے ادب سے کہا، لیکن آپ مسٹر عبداللہ کو فون کر لیجئے، اور میں آپ کے خادموں میں سے ایک ہوں اور آپ کے کمرے کا فون مخدوش ہو چکا ہے۔ اس نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ تو یہ بات تھی۔ عبداللہ میرے فون کا منتظر تھا اور میری آواز پہچان کر اس نے فوراً کہا، طوفان کا شکار ہو گیا ہے وہ شخص، اور اس بری طرح بدحواس ہے کہ بیان سے باہر ہے اور چاروں طرف دوڑتا پھر رہا ہے، اور ہم اس کی بھاگ دوڑ سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا سمجھے؟ بالکل ٹھیک۔ آج رات کو تم سے ملاقات ضروری ہے، اور یہی شخص جس سے میں سہارا میں تمہارے لیے فون کر دیا تھا تمہیں لے کر یہاں آ جائے گا اور کچھ ضروری گفتگو کرنی ہے، اور میں اس پر بھروسہ کر لوں؟ مکمل، میرا خاص آدمی ہے۔ اور عبداللہ نے جواب دے کر سلسلہ منتقل کر دیا۔ میں خاموشی سے باہر آ گیا اور آج کا پروگرام ملتوی کر کے رات کا کھانا کمرے میں ہی کھایا، اور رات کو 9 بجے کے قریب شرکی نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھولنے پر اندر آ گیا۔ اس نے ایک پلاسٹک ماسک مجھے دیتے ہوئے کہا کہ یہ استعمال کرنا ہوگی آپ کو، اور کچھ لوگ مسلسل نگرانی کر رہے ہیں، اور میں حیرت سے ماسک دیکھنے لگا تو اس نے اپنی خدمات پیش کر دیں اور ماسک میرے چہرے پر لگا دیا۔ ماسک پہنتے ہی میری صورت بدل گئی، اور نیچے آ کر یہاں لیموزین میں بیٹھ جائیے، اور جس کا نمبر HZ 570 ہے، اور میں وہیں انتظار کر رہا ہوں۔ میں نیچے اتر آیا اور کمرے سے نکلتے ہوئے کافی احتیاط رکھی تھی، اور لیموزین تلاش کرنے میں بھی دقت نہیں ہوئی۔ شرکی وہاں موجود تھا اور اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور لیموزین سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ نے اپنی ڈرائنگ روم میں میرا استقبال کیا تھا۔ شکر تھا کہ رباب موجود نہ تھی اور تہلکہ مچا دیا تمہاری آمد نے، اور میں نے کسی شخص کو اتنا بدحواس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور عبداللہ نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں الجھن میں ہوں۔ اب تو لطف آ رہا ہے مقابلے کا، بیٹھو اور میں تمہیں برازیل کے خالص کافی پلواتا ہوں۔ ہاں یہ تو بتاؤ کہ حسانہ عسکری سے کیا گفتگو ہوئی تمہاری؟ اور وہ مجھے یاد کراتی رہی کہ میں عسکری صاحب کی طرف سے غلط فہمی کا شکار ہوں اور مجھے گھر چلنا چاہیے، اور بالآخر مایوس ہوئی گئی تھی۔